So enraged मतलब होता है गुस्से में, right? So let's see the sentence. He was enraged by the unfair decision. So let's see the options. गुस्से में तो gentle नहीं हो सकता. Infuriated, हाँ ये गुस्से में होता है. Calm को चेक करते हैं, शांत है ये तो. Peaceful, ये भी बिल्कुल शांत है, आराम से है. So this is the right answer for us. All right, next one. Entreat. Entreat का मतलब होता है कि कुछ मांगने के लिए गिड़गिड़ाना, right? प्रेयर करना, विनती करना, राइट? सो लेट्स सी द सेंटेंस. शी एंट्रीटेड हिम टू स्टे. उसने उसको विनती की, उसने रिक्वेस्ट किया. सो रिफ्यूज इज नॉट द आंसर. बेग, यस. एंड कमांड एंड ऑर्डर, ये तो कमांड एंड ऑर्डर हो गए, सो दोनों नहीं हो सकते. बेग इज द राइट आंसर फॉर एंट्रीट, यानी भीख मांगना, विनती करना, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट. राइट, इट इज देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत छोटे समय के लिए होता है. So the beauty of the sunset was ephemeral. बहुत जल्दी खत्म हो गया वो. Fleeting, ये भी कुछ समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए आता है और चला जाता है, right? Eternal, ये तो हमेशा के लिए होता है, कभी खत्म नहीं होता. Permanent कभी खत्म नहीं होता. Lasting कभी खत्म नहीं होता. So ephemeral का synonym हो जाएगा fleeting. It's important, right? So please make a note of it. Next one. So epiphany. Epiphany का मतलब होता है किसी चीज का अचानक पता चलना. So there is a realization of something. Let's see the sentence. He had an epiphany about his career choice. उसको अचानक समझ में आया कि उसको क्या करना चाहिए. Mystery तो समझ में नहीं आती. Ignorance, उसको तो कुछ पता ही नहीं है. Revelation, हाँ, revelation का मतलब होता है अचानक कुछ पता चलना, समझ में आना. Secret तो किसी को पता ही नहीं होता. So C is the right answer. So epiphany, important word. Revelation, important word. Remember that, note it down. Let's go to the next one. Erratic का मतलब होता है जो सीधे नहीं जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सीधा. So his erratic behavior worried his friends. ये जो होता है, this is irregular, not regular, not predictable. So it's opposite. Not steady, that's opposite. Irregular होना, yes, that is the right answer here. Consistent, नहीं, it's not regularly consistent. So remove this also. Irregular is the meaning of erratic. So they can be synonyms. Let's see the next one. Exhort. Exhort का मतलब होता है अर्ज करना, एक स्ट्रांगली किसी को एनकरेज करना, उसको कहते हैं एग्जॉर्ट करना. द सेंटेंस कैन बी द कोच exhorted the players to give their best. Like, I will exhort you to do your best at the examination. Urge. Urge का मतलब होता है मोटिवेट करना. Looks good for exhort. Discourage तो नहीं करते हम. Dissuade इसका मतलब होता है हिम्मत तोड़ना किसी का. ये भी नहीं है. Restrain मतलब रोक टोक करना. So urge is the right meaning of exhort. We'll mark it. Let's see the next one. Expound. इसका मतलब होता है पूरी डिटेल्स में किसी चीज को समझाना, राइट? अच्छे से समझाना. जैसे he expounded on his theory in detail. बहुत अच्छे से समझाया. Withhold ये तो पूरा नहीं बताना होगा, राइट? So it is not the right answer. Confuse भी नहीं किया गया है. Explain, yeah, that looks to be a right answer. And hide is wrong. So explain will be the answer to expound. That's the meaning. समझाना किसी चीज को. Let's see the next one. Fallacy का मतलब होता है गलत फहमी, right? ये false word से बन के आया हुआ है. जैसे it is a common fallacy that all facts are bad, right? Let's see the meaning. Fallacy is not fact. Misconception, yes. Fallacy is a kind of misconception. Truth नहीं होता fallacy, वो तो false होता है, reality भी नहीं होता. So misconception is the meaning of fallacy, and that is the synonym. Let's see the next. Fallible. Fallible वो होता है जिससे गलती हो सकती है, गलती करने वाला. ऐसा नहीं है कि वो कभी गलती नहीं करता. So humans are fallible and they make mistakes. That's okay. Liable to error. Yes, वो गलती कर सकते हैं. This looks to be the right answer. Perfect नहीं, ये उसका opposite है. Infallible. Fallible का opposite होगा. Accurate होना तो fallible नहीं है. So a person who is liable to error is fallible. So we all are fallible. That's okay. Let's go to the next word. Fascinating. ये तो आप सब जानते हैं, बहुत बढ़िया जो चीज होती है. That is fascinating. The documentary on space was fascinating. Boring नहीं था वो. Appealing, good, looks good. Tiring भी नहीं था, dull भी नहीं था. So appealing is the right answer here. So fascinating is something which is attractive. We all like it. It's fantastic. Let's see the next one. Fastidious. ये बहुत बारीकियों पे ध्यान देता है, बहुत चूजी होता है. इसको perfection चाहिए होता है हमेशा. So she is fastidious about her appearance. Okay. Hard to please. Yes. जो fastidious होगा वो बहुत जल्दी satisfied नहीं होता, उसको एकदम perfection चाहिए होता है. It looks good. Let's see the other first. Easy going नहीं होता.
लीनियंट का मतलब वो सॉफ्ट या माफ करने वाला भी नहीं होता, उसको परफेक्शन चाहिए तो चाहिए। कैजुअल मतलब होता है बेपरवाह, नहीं, वो तो बहुत परवाह करता है परफेक्शन का। सो हार्ड टू प्लीज इज अ पर्सन हु इज फास्टिडियस। इसका एक और वर्ड होता है मेटिकुलस, राइट? सो वो भी इसका सिनोनिम है, जो बारीकियों पे ध्यान देते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान, राइट? सो आफ्टर द मैराथन ही फेल्ट एक्सट्रीम फटीग, उसको बहुत थकान महसूस हुई। लाइवलीनेस नहीं, ये तो एनर्जी से भरा होगा। फ्रेशनेस, ये भी बहुत ताजगी से भरा होगा। एनर्जी, उसमें ताकत है। Weariness, right? That is called थकान, right? Weariness is थकान. That should be the right answer. Yes. Fatigue is weariness. Let's see the next one. Fiasco. Fiasco मतलब होता है बहुत बड़ा failure. Okay. So the event turned into a fiasco due to poor planning. पूरा event fail हो गया. Disaster. Yeah, very close. Fiasco एक disaster होता है. Trump जीतने को कहते हैं, नहीं ये नहीं होगा. Success is सफलता, ये भी नहीं होगा. Victory भी जीतने को कहते हैं. So disaster is fiasco. Fiasco is a big disaster. All right. Let's see the next. Fortitude. Fortitude का मतलब होता है हिम्मत, courage. Okay. So she showed great fortitude in facing the challenges. Okay. Cowardice, ये तो बुजदिली है, डरपोक होता है ये। Fear डर होता है, weakness कमजोरी होती है। So courage is fortitude. Courage is fortitude. Let's mark it is the right answer. Let's see the next one. Frivolous. Frivolous का मतलब होता है जो मामूली सा हो, बेमानी हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता हो। He was punished for his frivolous behavior. ऐसा behavior था उसका जिसका कोई मतलब नहीं था, right? Trivial. Trivial मतलब होता है तुच्छ, मामूली सा, okay? छोटी मोटी सी बात। Yeah, frivolous का ये सही synonym हो सकता है। Let's check the others. Serious, no. Important भी नहीं होगा। Weighty. Weighty का मतलब होता है बहुत significant हो, ये भी नहीं होगा। So trivial, मामूली, तुच्छ, जरा सा importance वाला is the right answer here. So the frivolous crowd, इसका मतलब वो crowd जो था वो ऐसा था जो किसी मायने नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था उसका, right? ऐसी useless लोगों का crowd था। Let's see the next one. Frugal. Frugal एक miser होता है, कंजूस। So let's see. पर ये अच्छा कंजूस होता है, ये पैसे को बहुत हिसाब से खर्च करता है। She lived a frugal lifestyle, यानी वो पैसे बर्बाद नहीं करती थी। Wasteful is the opposite. Lavish, बहुत खर्च करता है। Economical है। Okay, she was economical. Looks good. Extravagant तो बहुत पैसे खर्च करता है। So economical is the meaning of frugal, miser, parsimonious. These are the synonyms. Let's see the next word. Futile. Futile मतलब होता है जिसका कोई असर ही ना हो, बेकार हो जाए जो चीज, वो futile होगी। Their efforts to convince him were futile. कोई फायदा नहीं हुआ। Useless. Yeah, looks good. Useless का भी कोई फायदा नहीं होता। Effective का मतलब होता है जिसका असर हो, ये नहीं हो सकता आंसर। Useful फायदेमंद होता है। Helpful मददगार होता है। So useless. Something that is futile is useless. That's of no importance. कुछ फायदा नहीं मिला। So mark it. And let's move to the next word. Garrulous. Garrulous होते हैं वो जो बहुत बातें करते हैं, बोलते रहते हैं। So the garrulous man talked all night. पूरी रात भर बात कर रहा था वो। Even I met a garrulous taxi driver. पूरे रास्ते वो बात कर रहा था। So garrulous लोग reserve नहीं होते। या वो बहुत talkative होते हैं। शांत, quiet नहीं होते। Silent, चुप नहीं होते। So talkative is garrulous. So garrulous is talkative. Let's go to the next one. Gregarious. ये लोग होते हैं जो बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत social लोग होते हैं। So he is a gregarious person and loves parties. लोगों के साथ रहना उसको बहुत अच्छा लगता होगा। Sociable. Yes, वो लोग sociable होते हैं। It should be the answer. Let's check the others. Lonely होता है वो जो अकेला होता है, लोगों के साथ नहीं होता। Reserved वो होता है जो कम बोलता है, काम से काम रखता है। Shy वो होता है जो शर्मीला होता है, ये भी ज्यादा ग्रेगेरियस नहीं हो सकता। सो सोशिएबल जो लोगों से मिलना जुलना ज्यादा करते हैं, दे आर ग्रेगेरियस। सो रिमेंबर दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ग्यूलेबल। ग्यूलेबल वो होता है जो बहुत भोला भाला सा होता है, उसको कभी भी बुद्धू बनाया जा सकता। सो द gullible tourists were easily tricked, right? Skeptical, ओ ये तो बड़ा सावधान होता है, तो हर चीज पे शक करता है, ये gullible नहीं होगा। Suspicious, ये भी gullible नहीं होगा, शक कर रहे हैं। Wary, wary का मतलब होता है जो सावधान रहता है हर जगह, हर समय। So ये भी नहीं होगा। Credulous, yes, credulous वो होता है जो जल्दी से किसी भी बात को मान जाता है, ज्यादा चेकिंग नहीं करता। It should be the right answer. So remember, gullible is credulous और इसका मीनिंग होता है भोला जो हर बात को मान लेता हो। Let's see the next word. Haughty. Haughty जो होते हैं बहुत घमंडी होते हैं, right? So the
घमंड से बनता है haughty. The haughty man looked down on everyone. हर किसी को अपने से छोटा समझ रहा होगा, उसको इतना घमंड होगा खुद पर. Humble, नहीं humble तो नहीं हो सकता. Humble बड़ा विनम्र होता है. Arrogant, yes, arrogant लोग घमंडी होते हैं. It should be the right answer. Modest, modest तो simple लोग होते हैं, घमंडी नहीं होते. Polite, ये बहुत तमीजदार होते हैं, कोई घमंड नहीं दिखाते. Arrogant is the answer. So haughty is arrogant. Let's see the next one. Heinous, ऐसे क्राइम जो कि बहुत बुरे क्राइम होते हैं उनको heinous crime कहते हैं. So the crime was heinous and shocking. अब pleasant तो नहीं होगा वो, क्योंकि pleasant का मतलब होता है अच्छा. Gentle सा भी क्राइम नहीं है ये, क्योंकि gentle तो बहुत नरम सा होता है. Atrocious, बहुत ही बुरा, right? So that should be the answer. Noble होता है बहुत सही और अच्छा, so ये भी नहीं होगा. Atrocious is the right answer. Heinous means atrocious, बहुत ही बुरा, विभत्स, कृत. Let's see the next. Heresy. Heresy होता है जो कि हम गॉड वगैरह में बिलीव नहीं करते, हम बड़े अनऑर्थोडॉक्स होते हैं. ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो रिलीजन में पूरी तरह से बिलीव करते हैं कि जो भी है वो बिल्कुल वैसे ही है. So heresy, he was accused of heresy, यानी उसने रिलीजन को नहीं माना, उसके अगेंस्ट कुछ किया. ऑप्शन ऑर्थोडॉक्स, ये तो मानने वाले होते हैं. अनऑर्थोडॉक्सी, यस दैट इज हेरेसी. ट्रेडिशन तो रिवाज होता है, ये भी हमारे रिलीजन का पार्ट है. फेथ, ये तो ईमान होता है, धर्म होता है. अनऑर्थोडॉक्सी जो है दैट इज हेरेसी एंड इट इज नॉट फॉलोइंग द रिलीजन, राइट? सो लेट्स मार्क इट. सो हेरेसी इज लाइक ब्लास्फेमी, like a person who is heretic, जो धर्म को नहीं मानता, heretic. So unorthodoxy comes to that category. Let's go to the next one. Heresy के जैसा ही ये है heretic. ये भी नहीं मानता, ये भी religion या rules of religion को नहीं मानता, right? Let's see the sentence. The heretic challenged the church's teaching. जो church था, उसकी जो teachings थी, religious teaching, उसको वो कहता है मैं इसको नहीं मानता. So यहाँ पे है dissenter. डिसेंटर भी होता है जिसके व्यूज अलग होते हैं, वो नहीं मानता. सो बिलीवर, ये तो मानता है, रिमूव कर दें. कंफॉर्मिस्ट, ये तो बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाता है, रिवाज को फॉलो करता है. फॉलोअर, ये तो फॉलोअर ही है. सो डिसेंटर हेरेटिक होता है जो कि किसी रूल को, किसी मान्यता को नहीं मानता, स्पेशली रिलीजन के केस में.